Dear students, welcome to my channel. In the last video, I had told you that I will upload the a topic of books of accounts maintained by a company, but due to some causes, I am unable to upload that video. But this is my second video, and in this video, I'm going to tell you about the types of companies or classification of companies. So let's start the video. So here, as you can see, I have divided the companies on three bases, that is incorporation, liability, and ownership. In the basis of incorporation, I have divided the companies into three types: chartered company, statutory company, and registered company. Bit by bit, I will discuss all the companies, so don't worry, just listen to my voice clearly and note down every point I'm going to tell you. So let's begin with chartered company. So chartered company means a company which is incorporated under the royal charter issued by a king or queen. If a charter is issued by a king or queen and a company is incorporated, that company will be called as chartered company. ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କିଙ୍ଗ ଅର୍ କୁଇନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିବା ରୟାଲ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ କହିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ? ଚାର୍ଟାର୍ଡ ମିନ୍ସ ଏ ରିଟେନ୍ document or permission granted by a king or queen to do business within their ruling territory or outside. ଯଦି କୌଣସି କିଙ୍ଗ ନିଜେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ରିଟେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତମେମାନେ ମୋ ଟେରିଟୋରିରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ ବା କିଛି କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ରିଟେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟାର ଇସ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି କିଙ୍ଗ, ତ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ କହିବା। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ତାର ଆହୁରି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଜାପାନ। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ଚାର୍ଟାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କହିଲି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ ଏ ଚାର୍ଟାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ। ଚାର୍ଟାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ବିକଜ ଦିଜ୍ ଆର୍ ରେୟାର ଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏବେ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ବି ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା statutory company. Statutory company means a company which is incorporated under the special act of a parliament or state legislature. There are two words, one is parliament and another is state legislature. Parliament means Lok Sabha, Rajya Sabha and President. In case of state legislature means Vidhan Sabha, Vidhan Parishad and Rajyapal. ଯଦି କୌଣସି ବିଲ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେଇ ପାସ୍ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇକି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କହିବା। କିଛି ଜିନିଷ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲା LIC, FCI, RBI. These companies are incorporated under special act of parliament. Next ଆମେ ଆସିବା registered companies. Registered companies are incorporated under the
Companies Act 2013 or Companies Act 1956 or any previous act. ଏଠି ନୋଟ୍ କରିବାର ଜିନିଷ ଏଇଆ ଅଛି ଯେ ରେଜିଷ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହା 2013 ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା 1956ର ଆକ୍ଟକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ଟ ଥାଏ ଯେମିତିକି କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ 1882 ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତିକି ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ 1949। ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କମ୍ପାନୀକୁ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ 2013 ସେକ୍ସନ୍ 2 ସବସେକ୍ସନ୍ 20ରେ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇବିଲିଟି companies divided into two types: unlimited liability company and a limited liability company. First, we will discuss about unlimited liability company. So, unlimited liability company is defined under Section 2, subsection 92 of the Companies Act 2013. A company not having any limit on the liability of its member is termed as unlimited company. In such company, if liability arises, invested amount as well as personal property of a shareholder can be called up for contribution. Unlimited company भलिया कंपनी एबे देखिया बहुत रेयर। Unlimited company section 2 subsection 92 रे डिफाइन करा जायछि। Unlimited companies रो गोटे स्पेशल फीचर्स होचे एया जे एथिरे जो शेयर होल्डर माने रहंती एमानकर लाइबिलिटी रो कोनोसी लिमिट नाही। जति इन केस कंपनी रो पोजीशन नाही कोनोसी डेब्ट सुझिबार, in that case the personal property of the shareholder can be used to pay that debt. These companies are rarely exist in this stage. Next time discussion करिबा limited liability company. Limited liability company further subdivided into two types: limited by shares and limited by guarantee. So let's begin with limited by guarantee. According to section 2 subsection 21 of the Companies Act 2013, it is a company in which liability of its member is limited to the amount of guarantee undertaken by them, which is specified in memorandum of association. In case of winding up the company, shareholder agrees to contribute this amount to the assets of the company. Limited by guarantee रो member माने specify करंती memorandum of association रे जे at the time of winding up the company से माने केते केते टका पेमेंट करिवे। जदि कंपनी वाइंडिंग अप हो कौनसी प्रकार पेमेंट करिवे नाही, जदि इन केस कंपनी वाइंडिंग अप होउची ताहाले ही सेमानक ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हबो, नहल नाही क्रिएट हबो नाही। तो तार एग्जांपल होउची लिमिटेड बाय गारंटी रो एग्जांपल होउची स्पोर्ट्स क्लब, ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एभलिया कंपनी मानकर मेन मोटिव प्रॉफिट न थाए ना ही डिविडेंड रो पेमेंट थाए। नेक्स्ट हमर आसुची लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर कंपनी गुडा को हमर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रे डिफाइन कराइछि। A company limited by share is a company in which liability of the members is limited to the extent of unpaid amount of the shares held by them. Where shares are fully paid, no further liability rests on them. जो कंपनी मानकर शेयर होल्डर मानकर लाइबिलिटी शेयर रो फेस वैल्यू जाए स्थगित रहे बा सेई जाए रहे, सेई भलिया कंपनी गुरे को आमे लिमिटेड बाय शेयर कंपनी बोली कहिताउ। एटा को सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 अंडर डिफाइन कराइछि। आउ लिमिटेड बाय शेयर कंपनी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. So one person company is a new concept in 2013. नुआ करी आसीची 2013 ने या पूर्वरु
वन पर्सन कंपनी भलिया किसी कंपनी नथिला। सो लेट्स बिगिन विथ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013 अंडर रे डिफाइन करा जायछि। प्राइवेट कंपनी रे तुमको तीनटा जिनस मन रखियार अछि। गोटे होची रेस्ट्रिक्शन, सेकेंड होची लिमिटेशन एंड थर्ड होची प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन कौन ना कौनसी प्राइवेट कंपनी तार मेंबर माने प्राइवेट कंपनी रो मेंबर माने तांको शेयर कौनसी थर्ड पार्टी बा बाहर लोकों को ट्रांसफर करि परिबे नहीं, ता ऊपर रेस्ट्रिक्शन अछि। नंबर 2 होची लिमिटेशन। लिमिटेशन होची जे प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 नंबर रो मेंबर रखि परिबो आ मैक्सिमम तार नंबर ऑफ मेंबर रहि परिबे 200 जन। ये जो 200 जन मेंबर अछंती सेटा कंपनीज एक्ट 2013 अंडर रे बे बढ़ी जाइछे, बट आगुरु यार मेंबर मानकर मैक्सिमम लिमिट 50 थिला, एबे एटा बढ़ी की 200 हो जाइछे। नंबर 3 होची प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन टू एनी इनविटेशन। कौनसी प्राइवेट कंपनी पब्लिक मानकू थ्रू एडवर्टाइज हो किंबा प्रोस्पेक्टस इश्यू करिकी एडवर्टाइज करिकी निजे निजर शेयर किंबा डिविनेचर पब्लिक मानकू इश्यू करि परिबो नाही, बा पब्लिक मानकू से एडवर्टाइज बा प्रोस्पेक्टस इश्यू करिबे नाही। तो एटा होची तार प्रोहिबिशन जे से किछि इश्यू करि परिबे नाही। ता छडा एथरे आ गोटे जिंस जानिबार अछि जे प्राइवेट कंपनी रो आगुरु गोटे थिला जे पॉइंट थिला जे प्राइवेट कंपनी शुड हैव 1 लाख रुपीस ऑफ पेड अप कैपिटल, बट सेई जो प्रोविजन टा अछि सेटा कंपनीज एक्ट 2013 रे भी थिला, बट अमेंडमेंट 2015 कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2015 अंडर रे सेई रेस्ट्रिक्शन जो 1 लाख रुपीस रो रेस्ट्रिक्शन पेड अप कैपिटल रो रेस्ट्रिक्शन थिला से रेस्ट्रिक्शन टाको काटी दिया जायछि। A private company compulsorily and mandatorily should add the word private limited to its name। प्राइवेट कंपनी तार ना रे प्राइवेट लिमिटेड ऐड करिया को बाध्य, ता माने से तार कंपनी रो लास्ट रे जहां भी ना दबो तार कंपनी रो लास्ट रे तार प्राइवेट लिमिटेड लिखिबा इट इज कंपलसरी। नेक्स्ट हमें डिस्कशन करिबा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 कंपनीज एक्ट 2013 अंडर रे पब्लिक कंपनी को डिफाइन करा जायछि। सो ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी इन व्हिच मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड। यार मेंबर मानक संख्या मिनिमम 7 दरकार आ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एथरे रही परिबे अनलिमिटेड, ता माने यार कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नाही मेंबर को नंबर ऊपर। नंबर 2 होची पिले एथरे प्रोस्पेक्टस जो एडवर्टाइजमेंट आउ प्रोस्पेक्टस रो जो रेस्ट्रिक्शन थिला प्राइवेट कंपनी रे, पब्लिक कंपनी से सेथरे कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नाही, ता माने पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस आउ एडवर्टाइजमेंट शो करके पब्लिक मानकू निजर शेयर आउ डिविनेचर बिक्री करि परिबो, कोनोसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन नाही। ता कंपनी रो जो शेयर होल्डर माने अछंती से माने निज शेयर को फ्रीली अन्य जन को ट्रांसफर करि परिबे। नंबर 3 रे हो एथरे नोट करिवार जिंस या अछि जे आगुरु थिला जे पब्लिक कंपनी रे मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल सेते थिबा दरकार 5 लाख, बट कंपनीज एक्ट रे अमेंडमेंट हिची 2015 रे अमेंडमेंट पर पब्लिक कंपनी सेमिति किछि रेस्ट्रिक्शन नाही जे 5 लाख रुपीस रो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल रहबा दरकार, ए बळिया कोनोसी रेस्ट्रिक्शन एबे नाही। पब्लिक कंपनी को आम टू टाइप्स रे डिवाइड कर परिबा, गोटे होची लिस्टेड आ गोटे होची अनलिस्टेड। आम से विषय बेसी डिस्कशन करबानी कारण बहुत गुड़े जिनस कवर करियर अछि, तो आम नेक्स्ट आम जिबा आम नेक्स्ट आम डिस्कशन करबा वन पर्सन कंपनी। सो वन पर्सन कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 रे डिफाइन करा जायछि। The one person company means a company which has only one member or one person। जो कंपनी रे जणे मेंबर थांती से कंपनी मान को वन पर्सन कंपनी कहा जाए। वन पर्सन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इन इट्स नेम
in the bracket as one person company after its name. तामाने कंपनी रो ना जहाँ भी रखिबे ता लास्ट रे तुमको वन पर्सन कंपनी बोली मेंशन करिया पड़िबो एंड इट इज कंपलसरी। आउ गोटे जिनस वन पर्सन कंपनी विषय कहि दउची जे एथिरे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वन रही परिबे आ मैक्सिमम डायरेक्टर एथिरे 15 रही परिबे। On the basis of ownership, company is divided into 5 types: government company, holding company, subsidiary company, foreign company and associate company। ये सब विषय में गोटे गोटे डिस्कशन करिया। फास्ट होची गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर डिफाइन कराई। A government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by central government or by any state government and includes a company in which is a subsidiary of a government company। ता माने होची पिले जदि कौनसी कंपनी रे 51% शेयर गवर्नमेंट सहित रिलेटेड थी बा गवर्नमेंट ताकू किणी नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि स्टेट गवर्नमेंट हो, जदि किणी नहीं थे 50% 51% शेयर ताहले सेई केस रे सेई कंपनी को हमें गवर्नमेंट कंपनी कहबा। जदि इन केस गोटे कंपनी रे दी जन जाक कोलाबोरेशन रे जदि कोनोसी कंपनी रो शेयर से माने किनछन, धर सेंट्रल गवर्नमेंट आ स्टेट गवर्नमेंट कोलाबोरेशन रे किछि शेयर किनिछंती ताहले से भलिया कंपनी को भी आमे गवर्नमेंट कंपनी कहबा। ता छड़ा नोट करिवार जिनस एठी एया अछि जे गवर्नमेंट कंपनी रो सब्सिडियरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कुहा जिवो। नेक्स्ट हमें डिस्कशन करिवा होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को मु वन बाय वन डिस्कशन करूची। होल्डिंग कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 अंडर रे डिफाइन कराई। होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी which acquires majority of shares of another company। जो कंपनी अलगा गोटे कंपनी रो मेजॉरिटी ऑफ शेयर मींस 50% रु अधिक शेयर। 50% माने 50% नो 50% रु अधिक शेयर 51% किंबा ताठू अधिक शेयर जदि से एक्वायर करछि ताहले सेठी हमें कंपनी जो कंपनी एक्वायर करथिबो से कंपनी को हमें होल्डिंग कंपनी कहबा। जेमति कि धरा जाऊ एक्स आ वाई दीटा कंपनी, एक्स कंपनी जदि वाई कंपनी रो 51% शेयर रु अधिक शेयर जदि से एक्वायर करि नैछि ताहले एक्स कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोली हमें कहबा। ठीक अछि। आउ नेक्स्ट हमें डिस्कशन करिवा फॉरेन कंपनी। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट व्हिच हैज सेट अप ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। जो कंपनी गुड़े को बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती आउटसाइड इंडिया आउ इंडिया भितर आसिकी से माने बिजनेस करती, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो लाइन भी हो, तो से माने जदि बिजनेस करती इंडिया रे ताहले से भलिया कंपनी को फॉरेन कंपनी कहजिवो। किंतु एठी गोटे जिनस तुमको पिले मन रखियार अछि जे फर्दर एठी किछि जिनस देछि लिखिछि जे फर्दर a foreign company may be treated as a company incorporated in India if 50% of its paid up share capital, whether equity or preference or partly equity partly preference, is held by one or more bodies incorporated in India and is complying with the provision of the act। এই টেবুলটা লেখা আছে ডিটেলস লেখা আছে যে कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन को कंडीशन रे एटा को हम फॉरेन कंपनी बोली कहिबा। देखो से सिटी पिले अछि इंडिया 50% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडिया। एठी लिखा है नो, ता माने 50% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल इंडियन नुहंती, ता माने 50% रो पेड ऑफ कैपिटल रो शेयर होल्डर माने इंडियन नुहंती। ता छडा स्टेटस ऑफ द कंपनी होची फॉरेन कंपनी। एटा जेतेबेले एई फॉरेन प्लेस ऑफ बिजनेस हेतिबो इंडिया आ 50% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय इंडियन नो हेतिबो ताहले सेई केस रे एटा को हम फॉरेन कंपनी बोली कहिबा। आउ एटा चैप्टर फॉरेन कंपनी लागि जिवो कंपनीज एक्ट 2013 अंडर रे। ठीक अछि। ता पर मु गोटे जिंस लिखिछि एक्स्ट्रा जे अछि जिंसटा, किंतु एई जिंसटा तमर काम रे भी आसीबो जदि कोनोसी के जदि
तुम क्वेश्चन पचारिबो ताहले भी तुम कहि परिबो जदि 50% पेड ऑफ कैपिटल रहुची ताहले सेई भलिया कंपनी को आमे डीम्ड इंडियन कंपनी बोली कहिबा। ठीक अछि, फंडा क्लियर हे गेला समस्त। एसोसिएटेड कंपनी देखिया देखिया जे एसोसिएटेड कंपनी कोन देखो प्लीज जदि एक्स कंपनी आ वाई कंपनी दीटा को अलग अलग दीटा कंपनी हुए आउ एक्स कंपनी रो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाई ऊपर थाए ताहले वाई को एसोसिएटेड कंपनी कह एक्स रो एठी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माने कोन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रो मीनिंग होची पिले यार वाई कंपनी रो 20% रु अधिक शेयर जदि एक्स कंपनी पाखे अच्छी ताहले वाई की एक्स रो एसोसिएटेड कंपनी कह एठी मन रख पिले जो शेयर रहिबो जो शेयर कैपिटल रहिबो हेटा 20% रु 50% भितर रहिबो जदि 20% 50% रही ताहले सेटा को एसोसिएटेड कंपनी कह जदि 50% रु अधिक रहिला 50% रु अधिक जदि शेयर रहुची एक्स पाखरे ताहले एठी होल्डिंग सब्सिडारी केस आसीजिवो सेटा को हमें एसोसिएटेड कंपनी कहि परिबा नाही। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.